students, today we start new chapter of class 8 subject general science. Name of the chapter is pollution. In this chapter we discuss about the pollution, pollutants, types of pollutions. So first we discuss about the reasons of pollution. Due to the interference of man in nature, it causes pollution. Due to industrialization, indiscriminate use of pesticides, fertilizers, urbanization, what happened? Pollution increases. Or these are the reasons of pollutions. So after that we discuss about pollution. Pollution क्या है? Contamination of natural environment that will be harmful to ecosystem is called pollution. यानी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो क्या होता है? कंटेमिनेट होता है, पोल्यूट होता है, दैट विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टम. और वो जो कंटेमिनेशन है वो किसको हार्मफुल, किसके लिए हार्मफुल है? फॉर द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम यानी क्या है? द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज द इकोसिस्टम. देन वी सी द पोल्यूटेंट्स. अब पोल्यूटेंट्स यानी factors affecting natural function of ecosystem and causing harmful effect on biotic and abiotic factors are called as pollutants. तो जो factors क्या करते हैं? affect the natural function of a ecosystem causing harmful effect. यानी उसके जो परिणाम हैं, उसके भयंकर परिणाम किस पर दिखाई देते हैं? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ इकोसिस्टम. तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द पोल्यूटेंट. Now we discuss about the air pollution. So what is the definition of air pollution? Contamination of air by harmful substance like poisonous gases, smoke, particulate matter, microbes is called as pollution. यानी contamination होता है किसका? air का. और किसकी वजह से होता है? by the harmful substance. जैसे gases है, poisonous, smoke है, particulate matter है, microbes है, तो उसे क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन. नाउ सी द रीजंस ऑफ एयर पोल्यूशन. देयर आर मेनली टू रीजंस ऑफ एयर पोल्यूशन, नेचुरल रीजंस एंड सेकंड इज द मैन-मेड रीजन. नाउ व्हाट आर द नेचुरल रीजंस? फर्स्ट इज द वोल्केनिक इरप्शन. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस substance are released during volcanic eruption. It contains harmful gases like sulfur dioxide, hydrogen sulfide, carbon dioxide. So it causes pollution. Then earthquake. There is a release of poisonous gases and water vapor from the girth of the earth. Then cyclones and dust storm. Now due to this there is a release of dust particles. Then forest fire. Due to the burning of wood, what happened? There is a release of certain gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, which causes pollution. And microbes in air, parthenium, spores of parthenium, then spores of bacteria, fungi release in the air, and it causes air pollution. Then man-made reasons. Now what are the man-made reasons? That is fuel. Due to combustion of fuels, then wood, timber, then fossil fuel like petrol, kerosene, diesel, the release of harmful gases. Solid waste. Due to burning of solid waste also there is a what happened? Air pollution causes. Then industrialization. Due to industrialization, smoke produced from the factories and it enter into the air. Then atomic energy plants and blast. So in atomic energy plants there is a use of uranium, thorium, plutonium, and it causes radiations. So these are the reasons of air pollution. After that we discuss air pollutants, sources and the effects. कौन से air pollutants है, वो कहाँ से आते हैं और उसके इफेक्ट क्या है on the plant and animal. So first is the sulfur dioxide. Sulfur dioxide released from the factories. And what are the effect? Irritation of eyes. Eyes में क्या होती है? जलन होती है. Respiratory tract,
और इट ऑल्सो अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारी जो श्वसन संस्था है उसके ऊपर भी क्या होता है, इफेक्ट होता है. एंड एक्सेस म्यूकस, बहुत ज्यादा म्यूकस तैयार होता है जिसे हम सर्दी कहते हैं, और कफ भी फॉर्म होता है. देन कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक. सो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीजेस फ्रॉम द व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री से जो चिमनी के थ्रू जो स्मोक फॉर्म होता है तो उसमें क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड. ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, लोअर्ड O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड. तो ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या करता है, कम करता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन से भी क्या है, ज्यादा है, यानी वो जल्दी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, कंबाइन होता है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन. देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वेहिकुलर स्मोक से क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. इसके इफेक्ट्स क्या है, इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स. लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होती है, इससे अफेक्ट होती है. पार्टिकुलेट मैटर, दैट इज वेहिकुलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक, and it causes respiratory diseases. Then dust also produced from vehicular and industrial smoke. तो इससे क्या होता है, सिलिकोसिस. डस्ट में अगर सिलिका पार्टिकल है तो वो अगर क्या होते हैं, इट एंटर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो क्या होता है, सिलिकोसिस होता है. पेस्टिसाइड्स प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, एंड पेस्टिसाइड्स का यूज करने के कारण क्या होता है, देयर इज अ, उससे क्या होता है, मेंटल वीकनेस, डेथ ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, यानी बहुत समय से अगर हम उसके कांटेक्ट में हैं तो क्या होता है, डेथ भी हो सकती है. देन मीथेन, मीथेन जो है ये जो गैस है ये लीक होता है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल लीकेज, और इससे क्या होता है, पॉइजनिंग हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, अस्थमा एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. Then see the effects of air pollution on plant and animals. तो इस एयर पोल्यूशन में जो पॉइजनस गैसेस है दे अफेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स. उसमें है पहले प्लांट्स. तो पहले क्या होता है, स्टोमेटा गेट क्लोज. तो स्टोमेटा क्लोज होता है. स्टोमेटा क्या है, लीव्स के जो एंडोडर्मिस है, ठीक है, अपर और लोअर एपिडर्मिस जो है, तो लोअर एपिडर्मिस में पोर्स रहते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर. सो दैट इज कॉल्ड एज द स्टोमेटा. स्लोइंग डाउन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी क्या होता है, कम होता है. एंड ग्रोथ इज रिटार्डेड, और ग्रोथ भी क्या होती है, स्टॉप होती है या कम होती है. देन एनिमल्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन इज एडवर्सली अफेक्ट. तो ये जो गैसेस है दे एंटर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके कारण रेस्पिरेशन जो है, ब्रीदिंग जो है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है. And second is the irritation of eyes. Another effect, that is the deflation in ozone layer. So ozone is present below the stratosphere at the height of about 48 kilometers from the Earth's surface. So that ozone absorbs harmful ultraviolet rays which are coming from the sun. So it protects the plant and animals on the Earth. Now what happened, due to the air pollution or due to various reasons there is a decreasing ozone layer. So what are the reasons of decreasing ozone layer? First is the greenhouse effect and global warming. अभी greenhouse effect क्या है? We know that though the CO2 gas is present in very less quantity, it plays an important role in the absorption of क्या करते हैं वो, absorption of solar radiation और solar heat. तो क्या होता है, पास्ट 100 ईयर्स, अभी 100 साल से क्या हो रहा है, देयर इज अ इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके कारण क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. सो दीज आर CO2 इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रीन गैस, ग्रीन हाउस गैस. क्या कहते हैं उसे, ग्रीन हाउस गैस, बिकॉज इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. एंड अदर गैसेस लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड CFC, it is also the greenhouse gases. तो इसके कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण अपना जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो रहा है, एंड इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. इट डिस्टर्ब द our ecosystem, it affects on the ecosystem, and as well as iceberg,
going to melt and increase the sea level. So these are the effect of greenhouse effect. Then acid rain. Acid rain भी एक कारण है किसके लिए? डिप्लेशन इन ओजोन लेयर. तो एसिड रेन जो है, जो गैसेस रिलीज होते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो ये जो गैसेस है ये किसके साथ मिक्स होते हैं? मिक्स विद द रेन वाटर एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन. तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड क्या होता है? फॉर्म होता है एंड देन that acid come down along with the rainwater, so it affect the plant and animals. It makes the water bodies soil acidic, और उसके कारण क्या होता है? It affect plants and animals living in water as well as on a land. Again there is a erosion of the monuments, buildings, then metallic statues due to the acid rain. Now we see the preventive measures. अभी इसका एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहला है पोल्यूशन कंट्रोलिंग मशीनरी शुड बी यूज. जो पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं ऐसी मशीनरीज क्या करनी चाहिए? यूज करनी चाहिए. जैसे अरेस्टर्स है, फिल्टर्स है. देन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टिंकिंग वेस्ट जनरेटेड इन अ सिटीज. जो वेस्ट फॉर्म होता है सिटीज में, तो वो प्रॉपरली क्या करना चाहिए? डिस्पोज करना चाहिए. कंट्रोल ऑन एटॉमिक टेस्ट. जो एटॉमिक टेस्ट है उसके ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए. केमिकल वेपन्स हैं. देन कंट्रोल और बैन ओवर सीएफसी प्रोडक्शन. तो एसीज में या जो कूलिंग एजेंट है, सीएफसी क्या है? कूलिंग एजेंट है. तो किस में यूज होता है? एसी में यूज होता है. तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए? बैन होना चाहिए, क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर. So in this way we control the air pollution.